Assalamualaikum and very warm good morning to all. Welcome back students. Welcome back to all in my channel. Today we are going to continue for standard 12 subject statistics chapter number 1 probability part 2. Today's topic is exercise 1.3 sum number 6 to 9. This is the 12th part of this chapter. It is very important topic or sum for examination. So concentrate here. Let's start with sum number 6 to 9 from exercise 1.3. The probability that the price of potato rises in the vegetable market during festive days in 0.8. The probability that the price of onion rises in 0.7. The probability of rise in price of both potato and onion is 0.6. Find the probability of rise in price of at least one of the two, potato and onion. जो हमें पोटैटो राइस होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है उसे हम ए से अज्यूम करेंगे. ओनियन राइस होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम बी से डिनोट करेंगे. और पोटैटो और ओनियन दोनों की जो राइस होने की प्रोबेबिलिटी है उसे हम ए इंटरसेक्शन बी से यहाँ पे डिनोट करेंगे. तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है. यहाँ पे एटलीस्ट वन यानी पोटैटो और ओनियन राइस होने की प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ए इज इक्वल टू इवन दैट द प्राइस ऑफ पोटैटो राइजेस इज इक्वल टू 0.8. बी इज इक्वल टू इवन दैट द प्राइस ऑफ ओनियन राइजेस is equal to probability B is equal to 0.7. A intersection B even that the prices of potato and onion rise, A intersection B is equal to 0.6. Now A union B is equal to even that the rise in price of at least one of the two, potato and onion, potato or onion. Therefore probability A union B is equal to probability A plus probability B minus probability A intersection B is equal to 0.8 plus 0.7 minus 0.6. Answer is 0.9. Sum number 7. Two aircrafts drop bomb to destroy a breeze. The probability that a bomb dropped from the first aircraft hits the target is 0.9 and the probability that a bomb from the second aircraft hits the target is 0.7. The probability of one bomb dropped from both the aircrafts hitting the target is 0.63. The breeze is destroyed even if one bomb drops on it. Find the probability that the breeze is destroyed. यहाँ पे फर्स्ट एयरक्राफ्ट में से बॉम्ब यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो जो ब्रिज यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी है इसे हम प्रोबेबिलिटी ए से डिनोट करेंगे. दूसरे एयरक्राफ्ट में से बॉम्ब ड्रॉप करने के बाद ब्रिज यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी इसको इवेंट बी यानी प्रोबेबिलिटी बी अज्यूम करेंगे. और ए और बी यानी फर्स्ट और सेकंड एयरक्राफ्ट में से बॉम्ब ड्रॉप करने के बाद जो ब्रीज है उसका डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इसे हम डिनोट करेंगे. तो उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है. ए और बी दोनों में से बॉम्ब ड्रॉप होने के बाद जो ब्रीज है उसे डिस्ट्रॉय करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. A is equal to event that a bomb dropped from the first aircraft hits the target. B is equal to event that a bomb dropped from the second aircraft hits the target. A intersection B is equal to event that a bomb dropped from both the aircraft hit the target. Therefore, probability A is equal to 0.9, probability B is equal to 0.7, A intersection B is equal to 0.63. If one or more bombs dropped on the breeze, it is destroyed. For example, at least one bomb dropped on the breeze, it is destroyed. Therefore, A union B is equal to even that the breeze is destroyed. Now, probability A union B is equal to probability A plus probability B minus probability A intersection B is equal to 0.9 plus 0.7 minus 0.63 is equal to 1.6 minus 0.63. Answer is 0.97.
Sum number 8. The probability that a teenager coming to a restaurant for dinner orders pizza is 0.63. जो टीनेजर रेस्टोरेंट में आके यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम ए से अज्यूम करेंगे, तो ए इज इक्वल टू 0.63. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्डरिंग कोल्ड ड्रिंक इज 0.54. जो टीनेजर है वो यहाँ पे ड्रिंक का ऑर्डर करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम बी से डिनोट करेंगे. प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 0.54. द प्रोबेबिलिटी दैट द टीनेजर ऑर्डर्स एटलीस्ट वन आउट ऑफ पिज़्ज़ा एंड कोल्ड ड्रिंक इज 0.88. यानी एटलीस्ट वन, यानी या तो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करेगा या तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.88. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टीनेजर कमिंग फॉर डिनर ऑन अ सर्टेन डे ऑर्डर्स ओनली वन ऑफ द टू आइटम्स फ्रॉम पिज़्ज़ा एंड कोल्ड ड्रिंक. यहाँ पे टीनेजर आएगा और या तो दोनों में से एक ऑर्डर करेगा, यानी यहाँ पे 2 चांसेस बनते हैं, या तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगा और ड्रिंक ऑर्डर नहीं करेगा, और दूसरी ड्रिंक ऑर्डर करेगा और पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं करेगा. तो यहाँ पे हम वो कैसे फाइंड आउट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. ए इज इक्वल टू इवेंट दैट अ टीनेजर ऑर्डर्स पिज़्ज़ा. बी इज इक्वल टू इवेंट दैट अ टीनेजर ऑर्डर्स कोल्ड ड्रिंक. ए यूनियन बी इज इक्वल टू इवेंट दैट अ टीनेजर ऑर्डर एटलीस्ट वन ऑफ द टू, पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक. Now probability A is equal to 0.63, probability B is equal to 0.54 and probability A union B is equal to 0.88 are given. Now A intersection B is equal to event that a teenager orders both pizza and cold drink. Union B is equal to probability A plus probability B minus probability A intersection B. Now probability A intersection B is equal to probability A plus probability B minus probability A union B is equal to 0.63 plus 0.54 minus 0.88 is equal to 0.29. Now event C, event that a teenager orders only one from pizza and cold drink. तो यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर करने की प्रोबेबिलिटी ए है, तो पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ए डैश. इसी तरह से ड्रिंक ऑर्डर करने की प्रोबेबिलिटी बी है, तो ड्रिंक ऑर्डर न करने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, बी डैश. तो यहाँ पे हमारे पास 2 चांसेस है. ए इंटरसेक्शन बी डैश, दैट मीन्स इवेंट दैट अ टीनेजर ऑर्डर्स ओनली फॉर पिज़्ज़ा, दैट मीन्स इवेंट ए, एंड नॉट फॉर कोल्ड ड्रिंक, दैट मीन्स इवेंट बी डैश. और A dash intersection B, यानी event that a teenager orders only for cold drink, that means event B, and not for pizza, that means event A dash. Therefore C is equal to A intersection B dash union A dash intersection B. तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास ए है, प्रोबेबिलिटी बी डैश नहीं है, तो बी डैश कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी यानी प्रोबेबिलिटी बी डैश. इसी तरह से ए डैश नहीं है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू ए डैश. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.63 माइनस 0.29 प्लस 0.54 माइनस 0.29. आफ्टर कैलकुलेशन 0.34 plus 0.25 is equal to 0.59. Now sum number 9. If A and B are mutually exclusive and exhaustive events in a sample space U and probability A is equal to 2 probability B, then find out probability A. Exclusive and exhaustive, that means exclusive यानी exhaustive यानी A union B is equal to U, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, तो उसे यहाँ पे एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे. ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी यू, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 1. नाउ प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी बी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए बाय 2. Now putting the value of probability B is equal to probability A by 2 in formula of probability A plus probability B. Now probability A plus probability A यानी यहाँ पे 2 LCM निकलेगा,
प्रोबेबिलिटी ए को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ए को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1. देयरफॉर 3 प्रोबेबिलिटी ए, 2 1 जा 2. प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 2 बाय 3. Now students, we have completed here sum number 6 to 9. We are going to continue sum number 10 to onwards in my next video. Do similar illustration in homework. Be concentrate on study. Be safe at home. Assalamu alaikum.